Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome Metropolitan Foundation e-learning YouTube channel. Students, this YouTube channel, I dedicated to importance of education. Before I start my topic, first of all, thanks a lot to giving me such a nice comments. Thank you very much. You given me such a nice comments on my video. Thank you very much. Let's start month of December, unit number 31, punctuation. Punctuation marks. Before I start unit number 31, I will explain you why is English so important in around the world. English is a language of international communication, the media and the internet. So learning English is very important for socializing and entertainment as well as for our jobs. It is the official language of the 53 countries. So student, English is a official language of 53 countries. 400 million people around the world speak English as their first language. The rest of the world use English as a second language. Around the people understand and speak little bit English. They know very well how to speak and understand. For communication, around the world, all the people learn English. International, you may say, multinational company always say essential skills is English. Almost all the content on the internet is written in best English. The world's biggest news outlets including TV, newspaper, magazine, radio are broadcast their wonderful program in English. Film, TV shows, music and other activities use proper English language. So English language is very necessary. So student, correct English and writing and written English is very necessary. So let's start our unit number 31, punctuation. So let's start unit number 31, punctuation. I am going to teach you most important punctuation marks so you can write correct English without making mistakes. There are too much exercises. They help you to solve your problem. So you are ready to write essay, newsletters as well as dramas, etc. Before I start my unit number 31, I will explain you previous unit number 19, conjunctions. हमने पिछले यूनिट के अंदर कंजंक्शंस पढ़ा. कंजंक्शंस क्या कहलाता है उर्दू में? हुर्फ़े अत्फ़ और हुर्फ़े रत्ब. तारीफ जो दो अल्फाज या दो जुमलों को जोड़ने का काम करता है, वो लफ्ज़ जो अल्फाज और जुमलों को जोड़ते हैं वो रत्ब कहलाते हैं और हुर्फ़े अत्फ़ कहलाते हैं. हुर्फ़े रब्त और हुर्फ़े अत्फ़ कहलाते हैं. अब आ जाता है कि जैसे कि हमारा कंजंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए, टू जॉइन द सेंटेंस. इसी तरह से हमारा यूनिट नंबर 31 है पंक्चुएशन. वो भी बहुत ज़रूरी है. लगती मामूली चीज़ें हैं. अगर ज़्यादातर बच्चों को अगर हम कहेंगे कि आपको पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं तो उनका जवाब यही होगा कि हाँ बिल्कुल आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आते हैं. कंजंक्शन का नंबर 7 मैंने आपको बताया था, प्रपोजिशन का 6 बताया था. इसके बाद आ जाता है आपका पंक्चुएशन. पंक्चुएशन को भी हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, पंक्चुएशन प्लस
इंटरजेक्शन, उसमें हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या है। आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं यूनिट नंबर 31, पंक्चुएशन एंड पंक्चुएशन मार्क्स। यूनिट नंबर 31, punctuation, page number 152. In writing, punctuation helps us to emphasize the pause or order the changes, which are much easier to indicate when we are speaking. Punctuation also helps to clearly communicate the meaning of the sentence. Now, why we use punctuation? To speaking, to punctuate, and helps to clearly communicate the meaning of sentence. In Urdu, it's called, punctuation is called in Urdu रमूज़-ए-औक़ात। रमूज़-ए-औक़ात तरकीब को फ़न किताबत का बुनियादी जुज़ शुमार किया जाता है, यानी राइटिंग का बेसिक ख़ास जुज़ शुमार किया जाता है। इसके ज़रिए तहरीर के मफ़हूम या मानी को समझने में आसानी पैदा होती है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वी लर्न ईजीली। अमली तहकीकी मैदान में कामयाबी के लिए रमूज़-ए-औक़ाफ़ का इल्म हासिल करना अशद ज़रूरी है। चंद ज़रूरी अमूज़-ए-औक़ाफ़ को पेश किया जा रहा है। उम्मीद है कि तहकीक के मैदान में काम करने वालों के लिए ये वीडियो करामत साबित होगी। तो स्टूडेंट देखिए, रमूज़-ए-औक़ाफ़ उर्दू में इसको कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? पंक्चुएशन। आपको दोनों चीज़ें मैं समझा रही हूँ कि पंक्चुएशन और पंक्चुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं और समझ नहीं पाते, तो इसको मैंने बहुत आसान करके आपको बताया है। अब आ जाते हैं रमूज़-ए-औक़ाफ़ का इस्तेमाल, यानी पंक्चुएशन साइन। रमूज़-ए-औक़ाफ़ का मफ़हूम और रमूज़-ए-औक़ाफ़ की तारीफ़ और रमूज़-ए-औक़ाफ़ की मिसालें, ये हम इसमें समझेंगे, यानी हाउ टू एक्सप्लेन द पंक्चुएशन। और पंक्चुएशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रमूज़ और औक़ाफ़ and their definitions and their examples. Okay, now student, first of all you learn how to write your copy work. First of all, every day you do one exercise in your homework copy. Make a title page month of December, and then after you should write unit number 31, punctuation unit number 31. Do in your copy very carefully and very neatly. Write the definition of punctuation with example, and that's given on your book, page number 152, 153, 154 and 155. And then after we will solve all the exercises that's given in your book. Write the definition of punctuation with examples. Students, ये दो आपकी जो डेफिनेशन है, ये आपने कॉपी में ब्लैक पेन से लिखनी है, और ब्लैक पेन से लिखने के बाद इसे आपने याद भी करना है। याद क्यों करना है? कि ये फाइनल के पेपर में आएगी ज़रूर। डेफिनेशन ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इज द कलेक्शन ऑफ सिम्बल्स दैट वी यूज, यानी निशानात, मार्क्स, ये कह लें, सिम्बल्स उसको कहते हैं, that we use in our sentences to make them clear to read and write or understand. In writing, punctuation helps us to emphasize the pauses or other changes which are much easier to indicate when we speaking. For example, Riyaz said Hamid is a fool. Riyaz said Hamid is a fool. Examples में आप देखें तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। नंबर 1 है, मेक अ हेडिंग द कॉमा एंड राइट द कॉमा विथ
example. The comma is used to express the shortest pause and is used as a separate but always within the sentence, never at its end. It has the following uses. आप देखिए इसे उर्दू में क्या कहते हैं, सख्ता, छोटी सी वाव की तरह बनी हुई होती है इन, और ये यूज किस लिए होती है, द कॉमा, वाई वी यूज कॉमा, छोटे छोटे जुमलों के दरमियान इसका इस्तेमाल होता है जिनसे मिलकर एक बड़ा जुमला बनता है और एक बात मुकम्मल हो जाती है। जैसे कि उस्ताद मोहतरम आए, दरसगाह में दाखिल हुए, कुर्सी पर बैठे और सबक पढ़ाया। ये तो मैंने उर्दू में एक्सप्लेन किया आपको। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है, उर्दू में समझ लीजिए ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि पंक्चुएशन जो है वो उर्दू में भी इतनी ज़रूरी है और इंग्लिश में भी इतनी ज़रूरी, क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। लैंग्वेज में हम इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि हमें पंक्चुएशन मार्क्स बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहली हेडिंग हमारी कौन सी बनी, द कॉमा की। अब कॉमा कहाँ कहाँ पर यूज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन ऑल द पंक्चुएशन मार्क विथ एग्जांपल्स। नंबर 1 द कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर्स, द सेमीकोलन, द कोलन and the apostrophe etc. Number 1 the comma. I explain you in Urdu what is comma. In writing, the comma is used to express the shortest pause and it is used as the separate but always within in the sentence, never at its end. It has the following uses. अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से हम कॉमा को यूज करते हैं। टू सेपरेट द वर्ड इन अ सीरीज, एग्जाम्पल, आई हैव बॉट कैरेट्स, पोटैटोज, सैलरी एंड ऑनियंस। नाउ मेक या प्लेस अ कॉमा आफ्टर कैरेट्स, आफ्टर पोटैटोज, आफ्टर सैलरीज एंड फुल स्टॉप एंड द एंड ऑफ द वर्ड। एग्जाम्पल में आपने देखा टू सेपरेट द वर्ड इन सीरीज, किस तरह से हम कॉमा से क्या कर रहे हैं, सीरीज को अलग अलग कर रहे हैं। टू सेपरेट द वर्ड, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस एंड पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, एग्जाम्पल द रोज एंड द लिली एंड द जैस्मिन, आई लव देम ऑल। टू मेक ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम यूज करते हैं गो होम, ही सेड, इसमें भी आप देखिए हमने छोटे छोटे कॉमाज लगाए हुए। टू सेपरेट द वर्ड, यस और नो में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यस और नो में। टू सेपरेट द एक्सप्रेशंस लाइक द कोर्स एंड, दूसरी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। टू सेपरेट द डेट एंड ईयर्स, और टू सेपरेट क्वेश्चन टैग्स। अब आपको समझ में आया कि कॉमा की कितने यूज है। टू सेपरेट words, to separate phrases, to separate direct indirect, to separate the word yes and no, to separate the expressions like course etc, and to separate date and the year, and to separate the question tags. Now here the number 1 the comma finished. You should write the comma from the page number 152, the comma, and it has the following uses. I explain you. Students, you write only the comma and its end and write only 2 examples. They are given in your book. Okay. Now I switch to full stop. The full stop. Make a heading full stop with the black pen. The full stop marks the end of the sentence and hence it used to express a long pause. It has the following uses of commas. To end all the sentence except the questions. After the abbreviation,
for titles, names and degrees in American English. Now see the green color box, page number 53. Here the British and American explanation given. You should follow these instructions. खत्मा. इस अलामत को वक्फा या ताम भी कहा जाता है. इसका इस्तेमाल बात या जुमले के मुकम्मल हो जाने पर किया जाता है. जैसे कि मैं और अली दोस्त हैं, हम दोनों कल बाजार जाएंगे. ये क्या, हमारी बात मुकम्मल हो गई और उसके बाद हम एक छोटा सा नुक्ता लगाते हैं, एक छोटा सा डैश देते हैं, वो खत्मा कहलाता है, फुल स्टॉप. कैपिटल लेटर्स, पेज नंबर 153. आई एक्सप्लेन यू कैपिटल लेटर्स. द फॉलोइंग कॉमन यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स. To begin the first word of the sentence, we start in capital letter. When we write something, we will start, we will begin our first letter in capital. To begin the first word of direct speech, we begin direct speech, direct, indirect, first letter in capital. We should write proper nouns, all the proper nouns and proper adjectives in capital. Now see the example. The British had the Australia. Here the British and Australia written in capital. To begin the names of the days and months. To begin the festival names. To begin the dates, month's name, we should write with capital letters. For the name of historical buildings, we start with capital letter. For the name of books, newspapers and journals, in capital letters. For the names of important historic event, we should start with capital letters. For important words in the heading of a story, article, essay, etc., we will start in capital letter. For the names of festival events, in capital letters. कैपिटल लेटर्स को लिखने के लिए आपने पेज नंबर 153 के ऊपर जहां से द फुल स्टॉप से लेकर लॉन्ग पॉज तक आपने लिखना है और आपको एग्जाम्पल्स 2 या 3 लेने, बस इससे ज़्यादा नहीं. पूरा जो ये एक्सप्लेन किया गया है आपको पेज नंबर 154 तक, वो एक्सप्लेन किया गया है कि कहाँ कहाँ पर हम कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं. अगर आपके कैपिटल लेटर्स को एक्सप्लेन करना पूछा जाए तो आप ये डिटेल दे सकते हैं, लेकिन हम ये यहाँ पर सारे पंक्चुएशन मार्क को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहाँ पर 1-2 लाइन का उसको एक्सप्लेन करना काफ़ी है और उसके साथ 1-2 एग्जाम्पल्स आप दे दें, बस इससे ज़्यादा नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. और इसे याद कर लीजिएगा, साथ के साथ आपने इसे याद भी करना है. नाउ आई एम गोइंग टू स्विच द सेमीकोलन. आफ्टर कैपिटल लेटर द सेमीकोलन. सेमीकोलन का आप हेडिंग बनाएं. मेक अ हेडिंग सेमीकोलन विथ ब्लैक पेन. द सेमीकोलन डिनोट्स अ ग्रेटर पॉज देन दैट ऑफ द कॉमा. इट्स कॉमन यूजेस आर. अब यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए कॉमन यूजेस, तो आपने बताना है डेफिनेशन के अंदर, वो लाइन नंबर 1 से लेकर दैट ऑफ द कॉमा यहाँ तक आप लिखेंगे और उसके बाद 1 या 2 एग्जाम्पल्स आप डाल देंगे, इससे ज्यादा नहीं. पेज नंबर 154 के ऊपर अब मैं इसे बता रही हूं आपको कि वेयर वी यूज सेमीकोलन टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विच हैव ऑलरेडी बीन separated by the comma. To separate the pairs of word in sentence, it is used between independent clauses, not to connected by the conjunctions. Now you understand what is the semicolon. Where we use semicolon to separate the pairs of word, to use between independent clauses, not to connected by the conjunction. Now I explain in Urdu. सेमीकोलन वी से इन उर्दू वक्फा. इसका इस्तेमाल जुमलों के बड़े बड़े
अज्जा के दरमियान होता है, जहां सख्ता के बिलमुकाबिल ज़्यादा ठहराव या खिंचाव की गुंजाइश होती है, यानी हमें ज़्यादा देर तक का जो पॉज देना होता है उसके लिए हम वक्फा का इस्तेमाल करते हैं, यानी सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। और कंप्यूटर में भी सेमी कॉलन का बहुत इस्तेमाल है, तो इसे बहुत अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए कि व्हाट इज सेमी कॉलन, वेयर वी यूज सेमी कॉलन। ओके, नाउ आई स्विच टू द कॉलन. The colon denotes a pause which is longer than the both of comma and the semicolon, but the shorter than the full stop. Some of its common uses are started on the page number 155. To introduce a series of word or list and independent clauses, where we use colon to separate. To introduce a series of word or list and independent. To introduce a question after the independent clauses. Now you see in the example where we use colon. सेमीकॉलन का उर्दू में मीनिंग, उर्दू में इसे राब्ता कहते हैं। मकाले या कहावत वगैरह को बयान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा, नाउ हेयर वी प्लेस अ सेमीकॉलन। उर्दू हमारी शनाख्त है, इसके बाद भी हम सेमीकॉलन लगा सकते हैं। इसे भूल गई, सेमीकॉलन कॉलन है ये, है ना। इसे क्या कहेंगे उर्दू में, क्या कहेंगे इसे उर्दू में? राब्ता। राब्ते से क्या मुराद है कि जहां हमारा क्या है, पूरा सेंटेंस खत्म हो रहा है, या कहावते और मुहावरे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। Apostrophe. The apostrophe is commonly used for the following purpose: to show the possession, to show the period of the time, to join the word through the contractions. Apostrophe we use to possession. My father's interested. My father. अब हम इज नहीं लगा रहे और apostrophe दे रहे हैं। To show the period of time we have the less than a week. A weeks इज नहीं लगा रहे बल्कि apostrophe दे रहे हैं। To join the word through the construction. John and Marine want to be getting married now. तो इन एग्जाम्पल्स में आप देखिए कि अपोस्ट्रोफी कहाँ कहाँ यूज हो गए, और इंग्लिश के अंदर अपोस्ट्रोफी बहुत ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा इस्तेमाल है। एक कैपिटल लेटर्स का, फुल स्टॉप का और कॉमा का, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर। अच्छा, पंक्चुएशन के अंदर हमने ये देखा कि हम अपनी राइटिंग को किस तरह से पंक्चुएट करते हैं, एंड इट्स हेल्प टू हमारी राइटिंग को अच्छा करने में, हमारे आइडियाज़ को देने में पंक्चुएशन बहुत हेल्पफुल है और हम क्लियरली इसको समझ सकते हैं। इन राइटिंग पंक्चुएशन हेल्प्स टू अस वेरी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। पंक्चुएशन जो है वो सही यूज़ उसका आना चाहिए। अच्छा, अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज ए के ऊपर। चलिए हम एक्सरसाइज ए यहाँ पर यूज कर रहे हैं। बेटा यहाँ पर आपको एक समझने की बात है, देखिए ये होमवर्क नहीं है बल्कि क्लास वर्क मैंने लिखा हुआ है। एक्सरसाइज ए की आप हेडिंग बनाएंगे। देखिए पहले तो आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। पहले क्वेश्चन 1 लिखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने क्या लिखा है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने क्या लिखा है, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर राइट द डेफिनेशन ऑफ पंक्चुएशन विथ एग्जाम्पल। यहाँ हमें पंक्चुएशन को एक्सप्लेन करना है और ये दोनों बस एग्जाम्पल आप लिखेंगे और पंक्चुएशन की पूरी डेफिनेशन की हेडिंग बनाएंगे ब्लैक पेन से। पंक्चुएशन इज द कलेक्शन ऑफ द सिंबल्स दैट वी यूज इन आवर सेंटेंसेस टू मेक देम क्लियर टू रीड एंड राइट और अंडरस्टैंड। फुल स्टॉप यहाँ पर मैंने लगाया इन राइटिंग। अब यहाँ से जैसे ही मेरा ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसके मैं
इनको कैपिटल में लिखूंगी. इन राइटिंग पंक्चुएशन हेल्प अस टू एम्फेसिस, पॉज और अदर चेंजेस विच आर मच इजियर टू इंडिकेट व्हेन वी आर स्पीकिंग. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ दो मैंने एग्जाम्पल दिए. यहीं पर ये आपका ये एक पेज हो गया क्लास वर्क का खत्म. अब दूसरे पे हम स्विच कर रहे हैं. नंबर 2, एक्सप्लेन ऑल द पंक्चुएशन मार्क विथ एग्जाम्पल. यहाँ हमने कहा है एक्सप्लेन करना. अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि राइट ओनली नेम्स ऑफ ऑल पंक्चुएशन मार्क, तो हमारा यही काम खत्म हो जाता. लेकिन यहाँ पर हमने पूछा है आपसे कि एक्सप्लेन ऑल द पंक्चुएशन मार्क विथ एग्जाम्पल. तो यहाँ आपको एक एक लाइन के अंदर द कॉमा, द फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर्स, सेमीकोलन, कॉलन एंड अपोस्ट्रोफी एक्सेट्रा को एक्सप्लेन करना है अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर. यहाँ पर आपका दूसरा क्लास वर्क शुरू हो गया. दूसरे क्लास वर्क में आप क्या करेंगे, पहले ये सारे 6 नाम लिखेंगे और उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे. कॉमा कहाँ पर एक्सप्लेन हो रहा है, पेज नंबर 152 पे. सिर्फ 2 लाइन का आपने करना है, 2 एग्जाम्पल्स इसमें लिख. नंबर 2 है फुल स्टॉप. फुल स्टॉप के अंदर भी बस एक लाइन का आपने एक्सप्लेन करना है. पेज नंबर 153 के ऊपर है. और कैपिटल लेटर्स को भी आपने सारा कंप्लीट नहीं करना है, बस सिर्फ कॉमन यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स के 2 या 3 ले लीजिए और उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल्स ले लीजिए. सेमीकोलन को आपने सेमीकोलन को एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करना है और 2 एग्जाम्पल्स लेने. अपोस्ट्रोफी को भी इसी तरह से आप करेंगे. इस तरह से ये आपका 2 दिन का, ये आपका 2 पीरियड्स का काम हो गया, यानी दोनों डेफिनेशंस लिखने के अंदर. अब आ जाइए एक्सरसाइज ए के ऊपर. एक्सरसाइज ए जो है वो सबसे पहले है आपकी पेज नंबर 152 पे. पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एप्रोप्रिएटली का मतलब यानी बिल्कुल सही तरीके से आपने पंक्चुएट करना है. यहाँ पर देखिए मैंने पूरे 10 के 10 आपको आंसर्स में दिखाए हैं. आपने क्या करना है कि पहला फर्स्ट सेंटेंस आप उतारेंगे, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, और उसके बाद उसका राइट आंसर लिखेंगे. जैक एंड जिल वेंट अप द हिल. यहाँ पर इसमें करेक्ट पंक्चुएशन लगाना है आपको. नंबर 2 है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड. ये आंसर है इसका. अब यहाँ पर देखिए कि ऑल किससे लिखा हुआ है, स्मॉल से लिखा है. परफ्यूम भी स्मॉल से लिखा हुआ है, तो आपको अरबिया भी किससे लिखा है, स्मॉल से लिखा है. तो नंबर 2 आपने क्या करना है, इसको लिखना है ब्लैक पेन से और फिर इसका आंसर ब्लू से यहां से देखना. ऑल द परफ्यूम ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड. नंबर 3 ये देखिए नताशा, मीना एंड इकरा. यहाँ पर देखिए हमने अलग अलग कॉमास को लगाया है और कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा है यहाँ पर. और आपकी बुक के अंदर देखिए नंबर 3 के अंदर सब स्मॉल में लिखा हुआ है. तो आपने इसको क्या करना है, कैपिटल से चेंज करना है नंबर 3 को. तो इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और नंबर 3 को, और फिर उसका आंसर देखेंगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर. नताशा, मीना एंड इकरा वेंट टू द विजिट शफक हु वाज इल. नंबर 4 लियाकत अली खान. यहाँ पर देखिए लियाकत अली खान का नाम ही स्मॉल से लिखा हुआ है, तो नेम हमेशा हम कैपिटल से लिखते हैं. तो नंबर 5 लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. नंबर 5 यू मे ब्रिंग योर ओन वाटर कलर्स, क्रेयॉन्स और कलर पेंसिल्स ऑन दैट डे. नाउ you should do 1 to 5 in your classwork copy. Okay, now switch to exercise B. Insert the comma in the sentences given below wherever they are necessary. Now see in exercise B. I had asked her to bring her dog along, but she changed her mind later on. I had asked her to bring her dog along, comma, but she changed her mind later on. Now you should write number 1 in black pen and write the answer with blue 1 to 5. You should write 1 to 5. On the December 14, 2004, my publishing company came into existence. Number 3,
The big question remains, of course, whether he will want to work with us. Number 4, well, it is difficult to give a very clear answer to that. Number 5, yes, I quite understand and difficulty you are facing, but I am sorry I cannot help you. Now here I finish 1 to 5. You should do exercise B in your homework copy. Okay. Exercise C. Make a heading. Exercise C. Rewrite these sentences by using capital letters, comma and full stop where required. आपको जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां वहां इसका आंसर देना है. मोना, फराज एंड आलिया हैव कम टू आस्क यू टू द पार्क. यहाँ देखिए कॉमा नहीं लगा हुआ, आपका फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ और कैपिटल में नहीं लिखा हुआ, तो तीनों ही चीजें आपने यूज करनी, कैपिटल लेटर्स भी, कॉमा भी एंड फुल स्टॉप. यू शुड डू दिस विथ वेरी केयरफुली. नंबर 1, मोना, फराज एंड आलिया हैव कम टू आस्क यू टू कम टू द पार्क. फुल स्टॉप यहाँ पर लगा दिया. नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक आपने करने. मैं आंसर रीड कर रही हूँ. On number 2, on Monday, Tuesday and Wednesday I go for the dance practice. देखिए यहाँ पर हम Monday, Tuesday and Wednesday को कैपिटल में लिख रहे हैं. क्यों लिख रहे हैं कि हमेशा मंडे यानी दिनों के नाम यानी डेज के नाम हम किस में लिखते हैं, कैपिटल्स में लिखते हैं. नंबर 3, द ताजमहल इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. नंबर 4, ख्वाजा निजामुद्दीन was the Prime Minister of Pakistan after the Liaquat Ali Khan. Number 5, the Church of St. Peter's is famous for its architecture. Number 5, I finish number 5. 1 to 5 you should do in your classwork copy. Exercise C को आपने क्लास वर्क के अंदर करना है, लेकिन ये जो रेस्ट ऑफ हैं 6, 7, 8, 9, 10 आपने इसे बुक में करना है. यहाँ मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि यहाँ आप बुक के अंदर इसको कर लीजिएगा. पूरी एक्सरसाइज को कैसे करेंगे, जहां जहां कैपिटल की जरूरत है आप पहले उसे सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद 1 to 5 यू शुड डू इन योर होमवर्क कॉपी. ओके. एक्सरसाइज ई. रीड द सेंटेंसेज एंड पंक्चुएट देम. हाउ हैव यू फाउंड सो मच फूड फॉर ऑल ऑफ अस, आस्क रिचर्ड. हाउ हैव यू फाउंड so much food for all of us, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा है, आस्क द रिचर. यहाँ पे देखिए पंक्चुएट किया है हमने, हाउ हैव यू. ठीक है, यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क का हमने यूज किया हुआ है, आस्क रिचर्ड, और यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाया. नंबर 2, आई कैन नॉट सी द चिल्ड्रन सफर हंगर एनी लॉन्गर, फुल स्टॉप. हेयर, यहाँ देखिए हेयर के अंदर अपने फिर कैपिटल यूज किया है. इज सम एग्स, ब्रेड एंड ग्रेवी फॉर फीड देम प्रॉपरली. नंबर 3, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, सेड द प्रिंसिपल. हिस्ट्री, सेड शारिक, आई लाइक हिस्ट्री बेस्ट. यहाँ पे देखिए कितने सारे पंक्चुएट. नंबर 3 के अंदर देखिए बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क यूज किए गए हैं. क्वेश्चन मार्क भी यूज किया गया, पोस्टॉफी भी यूज किया है और फुल स्टॉप भी यूज किया है. ही नोज 5 लैंग्वेजेस, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, सिंधी एंड पंजाबी. देखिए हमेशा कभी भी नंबर 4 के अंदर देखिए यहाँ सबको उर्दू को, इंग्लिश को, अरबिया एंड सिंधी वी यूज कैपिटल लेटर इन ऑल द सब्जेक्ट. हम सब्जेक्ट के जितने भी नाम है उनको कैपिटल से लिखेंगे, लेकिन लास्ट वाले में पंजाबी एंड सिंधी के बीच में हमने एंड का यूज किया है, इस्तेमाल किया है, कंजंक्शन का, सही ना, और फुल स्टॉप लगा दे. उसके बाद नंबर 5, दिस ईयर आई शैल बी स्टडिंग उर्दू, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. सारे सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर कैपिटल्स के अंदर लिखे हुए हैं और फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगाए. कॉमा को भी देखिए, कॉमा का यूज भी किया गया है. 1 से लेकर आपने 5 तक अपनी बुक में भी करने सॉल्व और अपनी कॉपी में 1 से लेकर 5 तक करने. एक्सरसाइज ई को अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सरसाइज डी कहाँ चली गई. अभी एक्सप्लेन करती हूँ मैं एक्सरसाइज डी को. पहले मैं इसको फिनिश कर लूँ,
Number 6, try to do at least one good deed a day. You will be very happy, I promise. Good deed किसको कहते हैं? Good deed होती है कोई भी अच्छी यानी गुड डीड कहलाती है कोई भी नेकी का काम आप करें तो आप ट्राई टू डू एटलीस्ट वन गुड डीड अ डे यू विल बी वेरी हैप्पी आई प्रॉमिस। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप बहुत खुश होंगे, ये करके देखें, वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें भी देखिए हमने कितनी सारी जगह पर पंक्चुएट किया। नंबर 7, आई हैव सीन द बादशाही मॉस्क इन लाहौर बट हैव नीदर सीन शालीमार गार्डन नॉर द टॉम ऑफ जहांगीर। आपने देखा कंजक्शन और पंक्चुएशन साथ लेकर चले हैं इसमें, तो कंजक्शन और पंक्चुएशन दोनों का चोली दामन का साथ है, इसलिए मैंने वीडियो का कलर भी चेंज नहीं किया। तो कंजंक्शंस भी आपको आने चाहिए और पंक्चुएशंस भी आनी चाहिए। और नंबर 7 ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि इसमें यहाँ पर कंजंक्शंस का भी यूज़ किया है, नीदर नॉर का भी यूज़ हो रहा है और सारे पंक्चुएट हो रहे हैं। नंबर 8, द ग्रेट एक्सप्लोरर अमुंडसन डाइड इन एंटार्क्टिका। द ग्रेट एक्सप्लोरर या नेविगेटर जो था अमुंडसन जो मरा वो कहाँ पर मरा? एंटार्क्टिका के अंदर जाकर मरा। नंबर 9, द इक्वेटर एंड द tropics of Cancer and the Capricorn are all the important lines of the latitude. Latitude की दो important line कौन सी है? इक्वेटर और ट्रॉपिक्स। नंबर 10, good heavens is the time I must rush if I have to catch the train. नंबर 10, ये बहुत ही अच्छी बात हो गई कि अगर मैं जल्दी से भागकर दौड़कर अपनी ट्रेन को कैच कर लूँ। यहाँ आपके नंबर 10 फिनिश हो गया। आपको एक्सरसाइज ई को अपनी कॉपी में करना है और कितने करने हैं? 5 करने हैं, बुक के अंदर सारे करने हैं। एक्सरसाइज डी, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड करेक्ट इट बाय द पुटिंग in capital letters and appropriate punctuation. John, how can you expect sick people to come and consult you when you keep all these animals in the house? It is very odd for the doctor to have his chamber full of the mice, and the Williams say they wouldn't come near your house again, no matter how sick they are. We are getting poor every day, and if you go on like this, none of the best people will have you for the doctor. But I like the animals better than the best people, said the doctor. You are ridiculous, said his sister, and the walked out of the room. Now here the exercise D finish. अब आपको करना क्या है? एक्सरसाइज डी को आप अपनी होमवर्क कॉपी में तो नहीं करेंगे, ना क्लास वर्क कॉपी में, मतलब आपकी दोनों अलग तो नहीं है, एक ही कॉपी है, वो मैंने गलती से बोल दिया। मतलब ये आपका होमवर्क है। बात समझ में आ रही है? होमवर्क कैसे कि आप क्या शाम में इवनिंग के अंदर अपना काम कर रहे हैं, उसमें आपने एक्सरसाइज ए दोनों क्वेश्चन, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी, एक्सरसाइज ई करनी है। और डी क्या है? आपने अपनी बुक के अंदर रीड करना है और इसे होमवर्क के तौर पर कॉपी नंबर सी में करना है। किस में करना है? कॉपी नंबर सी में, जहाँ मैंने आपको एक क्वेश्चन और लिखवाया था ना, उसी में करना है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको और भी चीज़ें दूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको सी कॉपी में कौन कौन से काम करने हैं, क्योंकि अब आपके पास आ रहा है टाइम अच्छा खासा, इसमें आपने अपने आप को इम्प्रूव कराना है। ओके स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, नाउ हियर फिनिश एक्सरसाइज डी। ओके, if you like my videos, you subscribe our YouTube Metropolitan YouTube channel and give comments for feedback. If you have any query,
ask on my WhatsApp group. Okay, till then, Allah Hafiz student, Allah Hafiz. I see you, I miss you. You wait my new excellent videos. Till then, Allah Hafiz student.